اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین وآلہ الطیبین الطاہرین، لا سیما علی بقیۃ اللہ العظم، ارواحنا و ارواح العالمین لک الفدا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ماہ مبارک رمضان کی 25 تاریخ آ گئی ہے۔ آج ہم لوگ 25ویں پارے کے سلسلے میں گفتگو کریں گے۔ 25ویں پارے میں سورہ فصلت کا بقیہ حصہ، کل آپ حضرات کی خدمت میں سورہ فصلت کے پڑھنے کے فائدے بیان کیے گئے تھے۔ سورہ فصلت کے علاوہ اس 25ویں پارے میں سورہ مبارکہ شورا، سورہ مبارکہ زخرف، سورہ مبارکہ دخان اور سورہ مبارکہ جاسیہ کی انشاءاللہ آج ہم لوگ تلاوت فرمائیں گے۔ سورہ مبارکہ فصلت کا جو بقیہ حصہ باقی رہ گیا تھا، اس کے مطالب میں سے ایک بات رہ گئی تھی، اور وہ یہ کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کا علم سوائے خدا کے کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ جیسے شگوفے میں کیا ہے، کسی کو نہیں پتہ کہ اس کے اندر کیا چیز ہے، یا اسی طریقے سے قیامت کا علم کسی کو نہیں ہے، خدا کو ہے۔ اسی طریقے سے ماں کے پیٹ میں لڑکا ہے لڑکی ہے، کیا ہے کسی کو نہیں پتہ ہے، وہ خدا جانتا ہے کہ حمل میں کیا ہے۔ اور اسی طریقے سے وضع حمل، کس ڈیٹ کو بچہ ہونے والا ہے، یہ خدا کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ آج سائنس پوری طور سے اور ٹیکنالوجی پوری طور سے علم پر حاوی ہے، لیکن اس کے بعد بھی کبھی کبھی آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے یہاں وہ چیزیں غلط ہو جاتی ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کوئی تاریخ، بچہ ہوتا ہے کسی تاریخ کو، وہ بتاتے ہیں کچھ، ہوتا ہے کچھ۔ ٹیکنالوجی اور سائنس غلط ہو سکتی ہے، خدا کا علم نہیں غلط ہو سکتا ہے۔ خدا نے کہا ہے یہ علم صرف ہم کو ہے، ہم ہی جانتے ہیں، اس لیے کہ ماں کے بطن کے اندر، ماں کے پیٹ کے اندر لڑکا یا لڑکی بنانا خدا کا کام ہے، نہ زوج بناتا ہے نہ زوجہ۔ وہ مرد اور عورت کا کام نہیں ہے کہ وہ لڑکا یا لڑکی، وہ خدا کا کام ہے کہ خدا جسے چاہے لڑکی دے دے، خدا جسے چاہے لڑکا دے دے۔ اس کے بعد جب سورہ فصلت سے آج ہم آگے بڑھیں گے تو اس کے بعد سورہ مبارکہ شورا ہے۔ سورہ مبارکہ شورا حدیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ اس سورہ کی تلاوت کرنے والا ان لوگوں میں ہوتا ہے جن پر فرشتے درود پڑھتے ہیں۔ آپ غور کریں کتنی اہمیت ہے سورہ شورا کی تلاوت کی، کہ اس کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے جن پر ملائکہ اور فرشتے درود پڑھتے ہیں اور ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص سورہ شورا کی مسلسل تلاوت کرے گا، حشر میں اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمکے گا۔ جب وہ پروردگار کی بارگاہ میں آئے گا تو اس سے کہا جائے گا تجھے اس سورے کی تلاوت کا اجر معلوم ہے؟ جو سورے کی تلاوت تو مسلسل کیا کرتا تھا، آواز آئے گی کہ تجھے اس سورے کی تلاوت کا اجر معلوم نہیں تھا، ورنہ تو اس کی تلاوت سے تھکتا نہیں، اتنی تلاوت کرتا کہ اس سے تھکتا نہیں۔ اگر تجھے اس کا اجر معلوم ہو جاتا، پس اسے تلاوت کرنے والے کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا، اور اسے یاقوت کا ایک سرخ محل عطا کیا جائے گا، اور دروازے، جس کے دروازے پر سیڑھیاں بھی یاقوت سرخ کی ہوں گی، اور حوروں کے علاوہ 1000 کنیزیں اور 1000 غلام اس کی خدمت کے لیے اس یاقوت کے محل میں ہوں گے، جو شخص مسلسل سورہ مبارکہ شورا کی تلاوت کرتا ہے۔ اور جو شخص اسے لکھ کر اپنے پاس رکھے گا وہ تمام کے تمام شر سے محفوظ رہے گا اور امن و امان میں رہے گا۔ اس کے مطالب میں جب آپ آئیں گے تو روایات اور جب آیتوں میں آئیں گے تو اس میں کہ اللہ
तमाम ख़ज़ानों का मालिक है। जितने भी ख़ज़ाने हैं अल्लाह उसका मालिक है और तमाम ख़ज़ानों की चाबियाँ परवरदिगार के पास है और उसी की मर्ज़ी से कायनात को रिज़्क़ तक़सीम होता है। अल्लाह की कुदरत की बहुत सारी निशानियां हैं। उन निशानियों में से जिसमें परवरदिगार आलम ने सूरह शूरा में जिन निशानियों का जिक्र किया है उनमें बारिश का नुज़ूल खुदा की निशानियों में से एक निशानी है। आसमान और ज़मीन की तख्लीक खुदा की निशानियों में से एक निशानी है। जानवरों की पैदाइश खुदा की निशानियों में से एक निशानी है। समुंदरों पर कश्तियों का चलना खुदा की निशानियों में से एक निशानी है। ये निशानियाँ इस सूरे के अंदर परवरदिगार आलम ने बयान की है कि ये खुदा की निशानियों में से एक निशानी है। और इसके बाद जब आएंगे तो उसमें औलाद देने की ताकत खुदा के पास है। वो जिसे चाहे दे, जिसे चाहे न दे, जिसे चाहे लड़की दे, जिसे चाहे लड़का दे, ये ताकत खुदा के पास है। हम लोग उनके पास जाते हैं, खुदा की बारगाह में आए। अगर किसी के औलाद नहीं है तो कुरान के वसीले से दुआ करे, अहले बैत के वसीले से दुआ करे, इंशाअल्लाह परवरदिगार आलम उसे औलाद इनायत फरमाएगा। और जिसे चाहता है वो सिर्फ लड़की देता है और जिसे चाहता है सिर्फ लड़का देता है और जिसे चाहता है वो दोनों देता है, वो उसकी मर्ज़ी से। सूरह शूरा के बाद जब आप आगे बढ़ेंगे तो सूरह मुबारक ज़ुख़रुफ़ की तिलावत करेंगे। सूरह मुबारक ज़ुख़रुफ़ मतलब सोने से सजा हुआ। वो उसमें आप जब आएंगे तो उसमें एक जगह आपको मिलेगा कि परवरदिगार चाहता तो तमाम घर को चांदी का बना देना और उनकी सीढ़ियाँ और उनके बैठने की जगह को सोने का बना देता, मगर ये सारी चीज़ें दुनियावी दिखावे की होती, दुनियावी फ़ायदे की होती। आखिरत तो सिर्फ मुत्तकीन लोगों की है। वो खुदा कहता कि मैं चाहता तो ये कर देता, लेकिन वो आखिरत देख रहा था। तो आप जब पढ़ेंगे तो उसमें आएगा ज़ुख़रुफ़ का मतलब सोने से सजा हुआ। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जो शख्स इस सूरे की मुसलसल तिलावत करेगा वो कब्र में हशरातुल अर्ज़ से महफूज रहेगा। आप देखते हैं मैयत कब्र में उतार दी जाती है, ज़मीन के अंदर हशरातुल अर्ज़ हैं, कीड़े मकोड़े और भी सब जानवर हैं, लेकिन रवायत है कि जो मुसलसल सूरह मुबारक ज़ुख़रुफ़ की तिलावत करेगा वो कब्र के अंदर हशरातुल अर्ज़ से यानी कीड़े मकोड़ों से उसकी मैयत महफूज रहेगी। और वो शख्स यानी सूरह ज़ुख़रुफ़ की तिलावत करने वाला फ़िशार कब्र से बच जाएगा। फ़िशार कब्र बहुत सख्त मंजिल का नाम है। रवायतों में यह है कि ज़मीन एक साथ जो हम जगह देखते हैं कब्र के अंदर, ज़मीन अपनी जगह पर आ जाएगी और इंसान उसके अंदर पिस जाएगा। यह है फ़िशार कब्र। लेकिन रवायत है कि जो शख्स मुसलसल सूरह ज़ुख़रुफ़ की तिलावत करेगा वो फ़िशार कब्र से बच जाएगा और जन्नत में दाखिल हो जाएगा, उसे जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा सूरह ज़ुख़रुफ़ की मुसलसल तिलावत करने वाले को। हदीस पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि जो शख्स इसको लिख कर पिएगा उसको किसी मरज़ के लिए दूसरी दवा की ज़रूरत नहीं होगी। यानी अगर कोई आदमी सूरह ज़ुख़रुफ़ को लिख कर पी लेगा तो उसको बीमारी के लिए किसी दूसरी दवा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पर ये परवरदिगार इस सूरे के सदक़े में उसे शिफा अता करेगा। और अगर मिर्गी वाले शख्स पर इसका पानी छिड़का जाएगा तो उसे फ़ौरन आराम मिल जाएगा। मैं फिर आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ कि कुछ सूरे की डिमांड है। अगर सूरे आपको कुछ दे रही है तो इसे आपसे कुछ लेना है, और लेना क्या है, आपको इन बातों पर अमल करना है जो इसके मतालिब हैं और इसकी मुसलसल तिलावत करना है। उन मतालिब पर और कुरान पर और आयात पर ईमान लाना है। और उसके बाद आप देखें कितनी बड़ी बात है कि अगर कोई सूरह ज़ुख़रुफ़ को लिख कर धो कर पी लेगा तो उसे किसी बीमारी के लिए किसी दूसरी दवा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप कुरान की डिमांड को पूरी करते जाएं, कुरान आपकी ज़िंदगियां आसान करता चला जाएगा। ये सूरह ज़ुख़रुफ़ के पढ़ने के फ़वाइद थे। फिर जब आप इसके मतालिब में आएंगे तो इसके मतालिब में गुज़िश्ता अक़वाम का अपने आबा व अजदाद की तक़लीद और नबी की तकज़ीब। उसके बाद दूसरी बात जो इसके अंदर है जनाब मूसा और फ़िरऔन का वाक़या है। जनाब मूसा और फ़िरऔन के वाक़े के बाद जहन्नमियों का बयान कि वो अपने अपने ठिकानों में किस तरह ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। ये पूरी तफसील है जो इंशाअल्लाह जब आप पढ़ेंगे तो आपको इसके अंदर मिलेगी। सूरह ज़ुख़रुफ़ के बाद आप सूरह मुबारक दुखान की तरफ आएंगे और सूरह मुबारक दुखान की तिलावत करेंगे। सूरह मुबारक दुखान का मतलब धुआं होता है। हदीस पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
पैगंबर इरशाद फरमाते हैं कि जो शब जुमा इसे पढ़ेगा उसके गुनाह माफ़ हो जाएंगे। यानी जो शख्स भी सूरह दुखान की तिलावत करेगा, परवरदिगार आलम उसके गुनाहों को माफ़ कर देगा। उसके बाद जो रात में इसकी तिलावत करेगा तो सुबह तक 70,000 फरिश्ते उसके लिए इस्तग़फ़ार करते रहेंगे। आप गौर कर रहे हैं, रात में अगर सोते वक्त तिलावत करते हैं तो सुबह तक 70,000 फरिश्ते उसके लिए दुआए इस्तग़फ़ार करते रहेंगे। इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, जो अपनी नमाज़ों में इस सूरे की तिलावत करेगा, यानी सूरह मुबारक दुखान की, जो अपनी नमाज़ों में इस सूरे की तिलावत करेगा वो महशर में खुदा की अमान में होगा और नाम-ए आमाल उसके दाहिने हाथ में दिया जाएगा। फिर एक पैगंबर अकरम की हदीस है, पैगंबर अकरम इरशाद फरमाते हैं कि इसकी तिलावत करने वाले को हर हर्फ के बदले में 1,00,000 गुलाम आज़ाद करने का सवाब मिलेगा। जो शख्स सूरह दुखान की तिलावत करता है हर हर्फ के बदले में 1,00,000 गुलाम आज़ाद करने का सवाब मिलेगा। जो इसे लिख कर सर के नीचे रखेगा वो ख्वाब में अपने लिए अच्छाइयाँ देखेगा। इसके पढ़ने से रिस्क में बरकत होती है और माल तिजारत में कसरत का सबब है। यानी अगर आप इसको लिख के अपने पास रखते हैं तो रिस्क में बरकत होगी, और अगर आप तिजारत करते हैं तो इंशाअल्लाह कसरत होगी और रिस्क में बरकत होगी। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जो इसे लिखकर अपने पास रखे तो हुकूमत की जानिब से वो तमाम तकलीफ़ों से महफूज रहेगा, लोगों के दिल में उसका रौब कायम होगा और लोगों के दिलों में उसकी मोहब्बत पैदा होगी। जो शख्स भी इस सूरे को लिख के रखेगा लोगों के दिलों में महबूब हो जाएगा, लोगों के दिलों में उसका रौब कायम होगा और हुकूमत की तरफ से उसे कोई तकलीफ नहीं होगी। जब आप इसके मतालिब में आएंगे तो कुरान मजीद के नुज़ूल का बयान है, शब क़द्र का तज़किरा कि इसमें तमाम अम्र का फ़ैसला होता है। उसके बाद अहले मक्का की हट दर्मी, नबूवत की निशानी देखने के बाद भी कहना कि ये तो जादू है, ये उनकी हटदर्मी है, उसका जिक्र आएगा। और शजरतुज़ ज़क़ूम का बयान कि ये मुजरिमों का बहुत सख्त और दर्दनाक खाना होगा। वो आप आएंगे कि जहन्नमियों के खाने का जिक्र है कि कितना सख्त और कितना ख़राब खाना और किस तरीके का खाना उन्हें मिलेगा। वो आप इंशाअल्लाह आज जब सूरह मुबारक दुखान की तिलावत करेंगे तो उसमें आपको मिलेगा। सूरह मुबारक दुखान के बाद आप इसी बारे में जब आगे बढ़ेंगे तो सूरह मुबारक जासिया, सूरह मुबारक जासिया, देखिए जासिया के माने घुटनों के बल बैठा हुआ। आप उसमें आएंगे तो उसमें पैगंबर अकरम जब उस आयत में आप पहुंचेंगे तो उसमें ये आपको मिलेगा कि तमाम उम्मत मैदान क़यामत में घुटनों के बल बैठी होंगी और एक एक का हिसाब लिया जाएगा। वो एक तफसील है जो इंशाअल्लाह आप जब तर्जुमे के साथ पढ़ेंगे तो आपको उसमें मिलेगी। इसके पढ़ने के फ़वाइद कि जो शख्स इस सूरे की तिलावत करेगा हिसाब के वक्त घबराहट से महफूज रहेगा, यानी उसे कोई डर नहीं होगा। क्यों डर नहीं होगा? इसलिए कि उसके नामाए अमाल से बुराइयां मिट चुकी होंगी, सिर्फ अच्छाइयाँ होंगी, उसे कोई घबराहट नहीं होगी और क़यामत के दिन वो बिल्कुल इत्मीनान से रहेगा। दूसरी हदीस यह है कि इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जो शख्स इसकी तिलावत करेगा वो जहन्नुम की आग नहीं देख सकता, देखेगा नहीं। जाना तो बहुत बड़ी बात है, अगर कोई शख्स मुसलसल सूरह मुबारक जासिया की तिलावत करता है तो वो जहन्नुम की आग देखेगा भी नहीं। फिर एक रवायत है कि जो इसे लिख कर अपने पास रखेगा वो हाकिम के और जालिम के जुल्म से महफूज रहेगा और हर देखने वाले की नज़र में महबूब होगा। जो भी उसे देखेगा उसकी नज़र में वो शख्स महबूब होगा। जो इसे लिख कर अपने पास रखेगा उसकी गीबत नहीं होगी, यानी जो शख्स इसे लिखेगा चूँकि वो सबकी नज़र में महबूब होगा लिहाजा कोई उसकी गीबत नहीं करेगा, उसके पीठ पीछे कोई उसकी बुराई नहीं करेगा। बच्चे के गले में अगर ये तावीज़ होगा तो वो तमाम आफतों से महफूज रहेगा, यानी सूरह जासिया का तावीज़ होगा तो तमाम आफतों से सूरह जासिया के सत्ते में वो महफूज रहेगा। जब अच्छा एक बात और इसकी आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दें कि इस सूरे को बाज़ रवायतों की बिना पर सूरह शरीयत भी कहते हैं, जो आयत नंबर 18 से अक्स किया गया है। और इस सूरे की खुसूसियत यह है कि ये सूरा
عزیز الحکیم یعنی پہلی آیت اور آخری آیت عزیز الحکیم سے شروع بھی ہوتا ہے اور اسی لفظ اور اسی مطلب عزیز الحکیم کے ساتھ ختم بھی ہوتا ہے۔ سورہ مبارکہ جاسیہ کی تلاوت اور مطالب آپ کی خدمت میں پیش کیے۔ ناظرین، یہ تھا آج ہمارا 25واں پارہ۔ انشاءاللہ کل ہم 26ویں پارے پر گفتگو کریں گے۔ تب تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیں۔ التماس دعا، خدا حافظ۔